بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میں ایک حلوائی کی بیٹی ہوں۔ مجھے کالا رنگ بہت پسند تھا۔ ایک دن اچانک ایک کالے کوٹ میں ملبوس ڈھکے چہرے والا نفوس میرا پیچھا کرنے لگا۔ کبھی وہ کھیتوں میں دکھائی دیتا تو کبھی ابا کی دکان کے قریب نظر آتا۔ ایک دن اس نے میرا پیچھا کیا اور میرا نام نازیہ ہے۔ میں ایک حلوائی کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ماں اور باپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی بدولت میں آج جو بھی ہوں، اس کا سہرا میرے ماں باپ کو جاتا ہے۔ انہوں نے غریب ہونے کے باوجود مجھے انٹر تک پڑھایا تھا۔ چونکہ وہ اتنے بڑے حلوائی تو نہ تھے، لیکن ان کی مٹھائی کی تعریف پورا محلہ کرتا تھا۔ چھوٹی سی معمولی دکان ہونے کے باوجود لوگوں میں ان کا کافی چرچا رہتا۔ ارد گرد کے لوگ اپنے نکاح اور دیگر کئی خوشی کے موقعوں پر ابا سے ہی مٹھائی بنواتے تھے۔ میں بھی ان کی کبھی کبھار مدد کر دیا کرتی، لیکن خاندان والوں کو میرا ہر کام میں ماہر ہونا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ موقع ملتے ہی اپنے دل و دماغ میں پنپتا زہر گھولنے کی کوششوں میں رہا کرتے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد ہی کئی اوٹ پٹنگ رشتے بھیج کر میری شادی کروانا چاہی۔ وہ ابا کی دکان پر نظریں جمائے بیٹھے تھے اور ان کو میرے خلاف کرنے کے 100 جتن کر چکے تھے، لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود ابا نے کسی کی ایک نہ سنی تھی اور ساری مخالفت مول لے کر انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی، اور جہاں تک میں پڑھ سکتی ہوں یہ بھی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن میں نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور ایک چھوٹی سی نوکری کرنے کا سوچا تاکہ ابا کا ہاتھ بٹا سکوں۔ اور پھر کئی جگہ اسکول میں انٹرویو دینے کے بعد میں ایک اسکول میں استانی لگ گئی۔ میری نوکری اچھی جا رہی تھی، لیکن ایک دن اچانک ہی ابا کی طبیعت بگڑنے لگی اور انہیں دواخانے لے جایا گیا۔ معائنے کے بعد پتہ چلا کہ ابا کو شوگر ہے اور ساتھ ہی ٹی بی کی بھی شکایت ہے۔ انہیں کام سے تھوڑا آرام کی ضرورت ہے۔ سو میں نے نوکری چھوڑ دی اور حلوائی کی دکان میں کام کرنے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ اس کے ساتھ امی بھی تھوڑی مدد کر دیتی۔ اس کام میں اچھا خاصا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن ابا کی دوا کے لیے مجھے کچھ اور ہی کام کرنا تھا۔ اسی لیے میں نے اسکول کے ذریعے کچھ ٹیوشن کے بچے گھر بلا لیے۔ اس اسکول کی پرنسپل اچھی تھی، انہوں نے رحم دلی دکھائی۔ زندگی گزر رہی تھی، ابا کا علاج بھی جاری تھا، لیکن اچانک ایک دن ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا اور میں حقیقی معنوں میں چکرا کر رہ گئی۔ نازیہ، آج تم دکان پر مت جاؤ، گھر پر کچھ مہمان آنے والے۔ میں صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے نماز پڑھتی ہوں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر کے ناشتہ کرنے کا وقت ہوتا تھا۔ اس کے بعد اماں کے ساتھ گھر کی صاف صفائی میں تھوڑا ہاتھ بٹا کر ابا کی طرف دکان پر چلی جاتی، جبکہ ابا نماز اور ناشتہ کر کے فوراً چلے جاتے۔ میں صبح اٹھی اور معمول کا کام کر کے میں دکان پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ امی تذبذب کا شکار سی کمرے میں چلی آئی اور مجھے دیکھ کر دکان پر نہ جانے کا کہا۔ میں تھوڑی حیرت اور تعجب سے پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ کیوں؟ میرا ہونا ضروری تو نہیں ہے؟ ویسے بھی مہمان ہیں کون جن کے سامنے میں نے آنا ہے؟ میں نے پلٹ کر امی کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا، جبکہ دکان جانے کے لیے گھر میں موجود مٹھائی کا سامان ایک شاپر میں ڈالنے لگی۔ جب ڈال چکی تو امی خاموش کھڑی تھی، جیسے کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ آج سے قبل ان کا ایسا انداز میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی ہے تو بتا دیں۔ خاموش رہ کر پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں نظروں سے جانچتے ہوئے سوال کرتے ہوئے ہمت دی تاکہ ان کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ زبان پر آ سکے۔ تمہاری پھپھو نے ایک رشتہ دیکھا ہے اور وہ آج تمہیں دیکھنے آنا چاہتے ہیں۔ امی نے بالآخر تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بلی تھیلے سے نکالی دی۔ مجھے تبھی منفی سوچوں نے گھیر رکھا تھا کہ میری مرضی کے خلاف ہونے والا ہے یا ہو جائے گا۔ اس پل میں بے یقینی سے ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ ماں سوائے اس کے لب سلے جا چکے تھے۔ آپ نے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ گھر کے حالات دیکھ رہی ہیں ابا کی کیا حالت ہے۔ اس وقت شادی کے لیے رشتے ڈھونڈنا، مہمانوں کا آنا، یہ سب بہتر نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کر رہی ہیں۔
मैंने मिठाई के सामान का शपर थोड़ी दूर पलंग पर पटकते हुए गैर मामूली सी आवाज में चटक कर पूछा। अम्मी मेरे बरम होने पर हवास बाख्तिकी का शिकार हो गई, लेकिन मुझे अभी एहतजाजन चीखना पड़ रहा था और वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ थी। बेटियों को वक्त से पहले रुखसत कर देना चाहिए, और यही तुम्हारे अब्बा की भी ख्वाहिश है। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में ही रुखसत करना चाहते हैं। तुम जानती हो कि उनके फैसले के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मी ने निढाल होते हुए वहीं करीबी पलंग पर बराजमान होते हुए मुझे देखकर अब्बा की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अब्बा आजकल जिंदगी से काफ़ी हद तक मायूस हो चुके थे। उनके अंदाज ने मुझे बेहद मायूस किया और आज के इस कदम से तो मानो मुझे गुस्सा भी दिला दिया। मैं सर झुकाए अब्बा की दिन ब दिन बढ़ती हुई मायूसी के मुतालिक सोचने लगी किस तरह उन्हें इससे निकालूं। साथ ही जी भरकर फुप्पो पर भी गुस्सा आने लगा, जिन्होंने रिश्ता लाने का ठेका ले रखा था, बजाय ये सोचने के कि उनके भाई की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। वो हमारे घर में शादियाने के ढोल बजवाने की ख्वाहिशमंद थी। अब्बा से तो मैं निमट लूंगी, फिलहाल आप उन्हें फ़ोन करके इनकार कर दे, वरना मैं खुद इनकार करना जानती हूँ। मैंने काफ़ी देर उस पहलू पर गौर करने के बाद उठकर अपना बाया ओढ़ा, साथ ही अम्मी को भी हुक्म दिया और वो मुझे मेरे हद दर्जा बिगड़े हुए अंदाज को भांप कर ही मुझे घूरने लगी। माँ बाप की मौजूदगी में बेटी का ब्याह दिया जाना बेहतर होता है। उनके बाद रिश्तेदार किसी भी नाकाबिले कबूल खोंटे से बांध देते हैं। हमें हमारा काम करने दो। मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि तुम्हारे अब्बा की मदद ना कर सकूं। बेफिक्र रहो, सारे काम बर वक्त मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक हो जाया करेंगे। हम दो ही तो लोग हैं, 2 वक्त की रोटी तो खानी है, बस तुम हामी भर लो। देखो, तुम्हारे अब्बा की भी यही ख्वाहिश है। अम्मी के खदशात भी अपनी तरह से बिल्कुल ठीक थे। माँ बाप के होने के बावजूद अब्बा के भाइयों को मैं एक आंख नहीं भाती थी। पहले मेरी पढ़ाई पर जुमले कसना, उसके बाद स्कूल की नौकरी और अब अब्बा की दुकान पर मेरे मदद करने से भी उन्हें मसला था। ये नहीं था कि वो भाई की बीमारी पर उसकी माली मदद कर दें, थोड़ा हाथ बटा दें, लेकिन ये सब करने की बजाय वो मुझ पर जुमले ज़रूर कसते या फिर ऐसी बात कह जाते जो काबिल बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता। उन्हीं रिश्तों के बायस मुझे नफरत सी हो गई थी, जो मजबूरी में साथ देने के बजाय ज़िंदगी का घिराव मज़ीद तंग करना जानते थे, ताकि हम जो अपने आप को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं अपने आप से भी आजिज़ होना शुरू कर दें। अभी भी माँ के खदशात जानकर मैं सही मायनों में दंग रह गई। अम्मी, अभी के लिए आपको और अब्बा को खामोशी साथ लेनी चाहिए। जब मुनासिब वक्त आया मैं हाँ कर दूंगी। फिलहाल अब्बा को मुकम्मल ठीक होने दें। मुझे इनकार नहीं है, बस अभी के लिए थोड़ा वक्त दरकार है, और वजह आप भी जानती हैं। मैंने नकाब मुंह पर चढ़ाया, शापर उठाया और माँ के गले लगते हुए उन्हें सर्द मोहरी की चादर ओढ़े हुए जवाब दिया। मुझे लगा शायद वो मुझे समझें, लेकिन उनके जवाब पर मैंने बेदिली महसूस की थी। तो वो कौन सा भी शादी करना चाहेंगे? तैयारियां होंगी फिर ही जाकर बात बनेगी ना। और तुम काम से फारिग होकर चेहरा दिखाने ही आ जाना। अगर घर पर नहीं भी रुक रही तो जब बात पक्की हुई तो कुछ माँ की मोहलत ले लेंगे। ऐसे थोड़ी ना ब्याह देना है हमने। अम्मी मुझे मनाना ही चाहती थी। मैं उनके चेहरे पर रकम आजिज़ी देखकर हिम्मत हार गई। आज एहसास हुआ था कि बेटी होना भी एक अजियतनाक होता है। जब चारों शाने चित कर दिए जाएं तो इंसान हार जाता है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने हामी भरते हुए सर हिला दिया और उन्हें गले लगाकर तसल्ली देकर घर से निकल आई थी। मैं घर से निकली तो दुकान वाली रोड पर चली आई। अभी आधे रास्ते में थी कि मुझे दूर पार ही खेतों में एक स्याह कोट में छुपाए गए चेहरे में मलबूस एक ज़ीहरू नजर आया, जिसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने काफ़ी गौर से चेहरा देखना चाहा, लेकिन देख नहीं पाई। वो मुकम्मल तौर पर स्याह कोट में ढका हुआ था, सर ता पैर तक। वो एक बड़ा सा कोट था और उसके चेहरे के ऊपर के हिस्से को सर से नीचे तक ढका हुआ था, जो थोड़ी नीचे तक था, और उसका सर भी झुका हुआ था। मैं थोड़ा डर भी चुकी थी, लेकिन फिर धीरे से कदम उठाते दुकान की जानिब चली आई। सारा रास्ता मेरे जहन में वही चेहरा घूमता रहा। जब दुकान में दाखिल हुई तो अब्बा ने मुझे हैरत और ताज्जुब के मिले जुले तासुरात से देखा। मैंने नकाब हटाया और हाथ में पकड़ा सामान अब्बा को थमा दिया। वो अभी भी हैरान थे, जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। अरे
आज तुम घर पर ही रहती ना, तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी था। माँ तुम्हारी मेहमानों का कह रही थी। अब्बा ने बिलाखिर खुद ही मेरी खामोशी भांपकर खुद ही मुझे मुखातिब करके कहा, तो तब समझ आया वो क्यों इतनी हैरत में थे। कौन से मेहमान? क्यों ज़रूरी था मेरा वहाँ होना? मैंने मिठाइयों को ठीक करते हुए पलटकर अब्बा को देखते हुए नासमझी की अदाकारी करते हुए उनसे पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अब्बा मेरे चेहरे पर इत्मीनान और लाइल्मी का अंदाज देखकर मुझे घूर कर पूछने लगे। मैंने अपनी हंसी दबाई। वो शदीद हैरत में थे। आपने चोरी छुपे रिश्ते की बातें चलाई हुई हैं और मुझे कानों कान तक खबर नहीं होने दी। बहुत बुरी बात है अब्बा। आप तो कहते थे कि मेरी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो रहा है। ये तो ज्यादती है। वो खामोश होकर बैठ गए, जैसे उन्हें अम्मा से भी इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। मैं मिठाई ठीक करके पलटी और अब्बा के करीब उनके पैरों में जा बैठी और उन झुर्रियों ज़दा हाथों को अपने हाथों में लेकर गिले शिकवे करने लगी। मेरे चेहरे पर संजीदगी देखकर वो बेबसी में मुब्तला हुए और ये बात मैं बखूबी जानती थी, वो भी अम्मा की तरह खदशात में मुब्तला थे। तुम जानती हो मेरी हालत किस कदर ख़राब रहने लगी है। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, वरना जिस कदर ये ख़ानदान तुम्हारी आज़ादी पर आग बगोला होता है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे सारे बदले लेगा। अब्बा अपने खदशात जाहिर करते हुए मेरे सर पर अपना कपकपाता हुआ हाथ धर कर कहने लगे। मेरा दिल पसीजा, जी चाहा कि रो पड़ूं, लेकिन अपने आप को काबू में रखा। मेरी कम हिम्मती पर अब्बा भी हिम्मत हार बैठेंगे। उस पल तो उन्हें हौसले की अशद ज़रूरत थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मेरी बातें ही मरहम बन सकती थी। और आपको क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? ये बुज़दिली तो नहीं सिखाई कि मुंह तोड़कर जवाब न दे सकूं। मैंने थोड़ा सा मुस्कुराकर अब्बा की तरफ देखते हुए बहादुरी से कहा, तो वो मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली। वक्त और हालात सब ख़त्म कर देते हैं और मैं वो सलूक तुम्हारे साथ होता बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकलख्त मुस्कुराहट सुकेड़ कर उन्होंने फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश की। मुझे बेहद चिढ़ हुई थी, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे से गायब नहीं होने दी। अब्बा, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अपनी बेटी को इतना कमज़ोर समझा हुआ है क्या? मैंने खफगी से अब्बा से शिकायत की। अच्छा छोड़ो, ये काम करो और फिर जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। तुम्हारी माँ भी इंतज़ार कर रही होगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, सब कुछ कर सकती हो। मेरी खुशी की खातिरी से ये काम भी कर लो। अब्बा ने यकलख्त पैंतरा बदला और मुझे अपनी मुट्ठी में जकड़ना शुरू कर दिया। मैं लब भींचे अपने आप को काबू करने लगी ताकि गुस्से में बरहमी का इजहार न कर बैठूं। आप मुझ पर ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत करना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं भी रिश्ता होने के बावजूद रुखसत नहीं होने दूंगी खुद को। याद रखिएगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने उनकी बात पर अमल करने की हामी तो भर ली, लेकिन साथ ही अपना इरादा भी जाहिर किया ताकि वो मुझे रुखसत करने की ख्वाहिश तो हरगिज़ न कर सके, बल्कि रिश्ता होने तक ही रहे। अब्बा माना कि अपनी जगह ठीक थे, लेकिन उन्हें अभी भी हौसले की ज़रूरत थी। एक मर्ज इंसान को यकलख्त बदल कर रख देती है। सारे अहदो पैमा उसूल यकलख्त ही ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप मर जाते हैं। अब्बा के साथ भी यही हो रहा था। एक गुर्बत की चक्की में पिसते रहना, दूसरा इकलौती और जवान बेटी की शादी की फिक्र में वो दोनों ही निढाल थे। अगर बीमार न होते तो हिम्मत और हौसले में मुब्तला रहते, लेकिन सेहत की आजमाइश भी थी। उन हालात में मैं बेटी होने का फ़र्ज़ ना निभा सकूं तो ये अम्मा और अब्बा दोनों के साथ ज़्यादती थी। अली, तुम्हारा मफलर बहुत प्यारा है, किधर से लिया है? मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक पड़ोस के बच्चों में अली पर निगाह पड़ी। उसके गले में एक स्याह मफलर था जो मुकम्मल स्याह था। उसके ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटी सी सुर्ख पट्टी थी जो दूर से ही बहुत भरी लग रही थी। उसकी ऊन दूर से देखने के बावजूद बेहद चमकती दिखाई देती। मैंने यकलख्त देखकर फौरन ही मुस्कुराकर सताइश से देखते हुए तारीफ कर डाली। मेरी अम्मी ने मुझे आज ही बाजार से ला कर दिया है। मेरी खाला के बेटे के पास भी ऐसा ही था। मैंने जिद की थी तो उन्होंने मुझे भी दिलवा दिया। अली ने खुशी से वो मुफलर गले से उतार कर मेरे पास आकर मुझे दिखाया। मैंने महसूस किया वो ऊन भी बेहद नरम सी थी। स्याह रंग मेरा पसंदीदा रंग था।
उस रंग में मुझे हर चीज़ ही बहाती। शायद वो मुफलर भी मुझे तभी इतना मुनफरिद दिखाई दे रहा था और मैं मुतासिर भी हुए जा रही थी। आज मैं भी अम्मी से कहूँगी कि मुझे भी ऐसा ही दिलवाएं। इसका रंग बहुत प्यारा है। मैंने यकलख्ती उसे वापस लौटाते हुए अपनी ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर वो मुझे देखने लगा। हाँ, अली वैसे तो बहुत प्यारा है, मेरा तो जी चाह रहा है ऐसा ही लेने को। अपनी अम्मी से पूछकर बताना कहाँ से लिया है। अचानक ही अली के अकब में बैठे उसके दोस्त ने भी मुस्कुरा कर कहा तो मैं उन बच्चों की नदीदी फितरत देखकर मुस्कुरा पड़ी थी। उन्हें जो चीज़ पसंद आती थी यूं ही वालिदैन से जिद किया करते। मैं खुद भी बचपन में ऐसा कई मर्तबा कर चुकी थी। मैं उन्हें कहूँगा वो आपके लिए भी ऐसा ही लाएं। अली ने मुझे देखकर मुझे कहा और उसके मासूमियत भरे अंदाज पर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आन ठहरी। अरे पागल, नहीं, मैं खुद ले लूंगी, उन्हें परेशान मत करो इतनी सी बात के लिए। मैंने अली के सर पर हल्की सी चप्पत रसीद की और मुस्कुराकर उसे टोका। आप उस्तानी हैं, अगर ला दूंगा तो कोई बात नहीं, आपका हक बनता है। अली ने नरूठेपन से कहा तो मुझे उसकी मासूमियत पर बेहद प्यार आया। वो तकरीबन 9 साल का था। उसकी बातें और चेहरे पर रक्सा मासूमियत इस कदर मोह लेने वाली थी कि इंसान खुद ब खुद खींचता चला जाता। तुम बहुत तेज हो भाई। मैंने उसके गाल धीरे से खींचे और हंसने लगी। यकलख्त अकब से अचानक ही अम्मी चली आई। हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी है, वक्फे वक्फे से देखती रहना। मैं जा रही हूँ तुम्हारे अब्बा की दवा लेने, वापसी पर थोड़ी सब्जी भी खरीदनी है, जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी उस पर मुकम्मल तैयारी में थी। हाथ में अब्बा की दवाइयों की पर्ची थी और साथ में सामान भी थामे हुए थी। मुझे हिदायत दे रही थी। मैं समझकर सर हाँ में हिला दी। जी ठीक है, रुके, मैं पैसे लाकर देती हूँ, सारी दवाइयाँ ले आइएगा। बार बार बाजार का चक्कर लगाना कौन सा आसान काम है, थकावट हो जाती है। मुझे अचानक याद आया तो अंदर कमरे की जानिब लपकी और फिर वहाँ से अपना पर्स उठा कर लाई। अम्मी को पैसे निकाल कर दिए, फिर उन्हें रुखसत करके पर्स कमरे में रखकर लौटी तो हांडी का ख्याल जहन में कूदा। तुम लोग पढ़ाई करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुमसे सारा सबक सुनती हूँ। किसी ने भी गलती की तो आज बहुत पिटाई करूंगी, याद रखना। बावर्ची खाने की जानिब जाते हुए मैंने पीछे से सब बच्चों को सबक की नसीहत की ताकि मेरा ध्यान इधर उधर लगा पाकर शरारतों में न लगे रहें। अब्बा का परहेजी खाना था सो उस पर ध्यान देना जरूरी था और बच्चों की जिम्मेदारी भी अलग थी, दोनों पर ही तवज्जो देनी थी। ये मिठाई का ऑर्डर आया था, मैं थोड़ी देर तक देने जाऊंगा। आज के लिए यही काम बहुत है। तुम दुकान बंद करके घर चली जाना, मैं भी ये सामान देकर घर आ जाऊंगा। दूसरे दिन ही अब्बा मिठाई का टोकरा उठाए करीबी इलाके में मिठाई देने रवाना हो गए। उन्होंने जाने से कबल मुझे भी नसीहतें की तो मैं जो मिठाइयों के डब्बे रख रही थी उनकी जानिब पलटी। ठीक है, पहले ये मुझे दे, मैं आपको पैक कर दूं, वरना मिठाई खराब हो जाएगी। मैंने उनके हाथों से मिठाई का टोकरा लेकर रखा। साथ में जो डब्बे थे वो मुझे दुरुस्त नहीं लगे सो मैंने उन्हें बदलकर मिठाई एक अच्छे गत्ते के डब्बों में डालकर बंद की, क्योंकि अक्सर मिठाइयाँ कम म्यारी डब्बे में मौजूद होने की वजह से सिकुड़ जाती थी, फिर जल्दी खराब हो जाती। इसलिए मुझे शिकायत से कबल ही सारी एहतियाती तदाबीर करनी थी। अस्सलामुअलैकुम। अचानक दुकान में एक खूबरू सा नौजवान दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सुर्खी सी थी। दिखने में वो काफी वजीह किस्म का जिस्मो कामत से हट्टा कट्टा नौजवान था। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या चाहिए? मैंने धीरे से जवाब दिया, जबकि अब्बा ने ऊंची आवाज में जवाब देकर उस नौजवान से आने की वजह पूछी। मुझे मिठाई चाहिए जो बहुत खास हो, यहाँ की मशहूर किस्म की हो। सालगिरह के लिए ज़रूरी है और कुछ खास खुशखबरी के लिए भी, तो उसके हिसाब से कोई खास मीठा। उस शख्स ने काफ़ी शाइस्तगी से अपने आने की वजह बताई और साथ ही मिठाई की इकसाम का भी पूछा। मैं पहली मर्तबा यूं इस कदर ख्याल करने पर हैरान हुई थी। लोग अक्सर कम कीमत और छोटी छोटी मिठाइयों का कहते थे कि पैसे भी कम लगे और चीज़ भी थोड़ी कम ही हो। आप खुद जायका चक्कर मुंतखब कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे नहीं है। बेटा ज़रा मिठाई लाना। अब्बा ने उसे जवाब देकर मुझे मिठाई लाने को कहा। मैं सर हिलाकर आगे बढ़ी और दीगर अनवा इकसाम की मिठाइयाँ उठा कर लाई। उसके सामने रखते ही उसने सबका जायका चखा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे। उसे मिठाई सभी बहा गई थी।
वो सोच में मुब्तला था कि किसको मुंतखब करे। मेरे ख्याल में ये मिठाई ठीक रहेगी। आप ऐसे ही मिठाई के 10 टोकरे तैयार करके जुमेरात की शाम को भिजवा दीजिएगा, मेरा ये पता है। बिलाखिर उसने खोए वाली मिठाई का ऑर्डर दिया, साथ ही अपना पता भी दे दिया। मैंने मेज से उसका पता उठाकर देखा तो वो काफी दूर था। अब्बा, इस पते पर मिठाई लेकर, वो भी शाम को? आपकी तो तबीयत भी खराब रहती है, इनकार कर दें। मैंने यकलख्त अब्बा की तबीयत के पेश नज़र अब्बा को रोकने की कोशिश की। पहले ही वो बीमार थे, मजीद इतना सफ़र देखकर मुझे गुस्सा सा आया। मैं ले जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, अब्बा ने मुझे हौसला दिया, जबकि मैंने ज़ब्त से काम लिया। ये वहीं के किसी करीबी हलवाई से भी मिठाई तैयार करवा सकते हैं, इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने चिढ़कर अब्बा को देखते हुए कहा। मैंने वहाँ की मिठाई देखी है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई। मौके की मुनासबत से मुझे अहम ख़ास म्यार चाहिए था। अब बराए करम बना दीजिएगा, इनकार मत करें। उस शख्स ने काफ़ी देर तलक से मेरी जानिब निगाह उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन अब की मर्तबा उसने सर उठाकर बराह रास्त मुझे देखकर मुखातिब किया। मैं सटपटा सी गई। उसमें एक अजीब सी कशिश थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारा ऑर्डर वक्त पर मिल जाएगा। मैं कल ही सामान लाकर तैयारी शुरू कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा ने उसे यकीन दिलाया तो मैं भी लब सिए उसे एक नज़र देकर बकाया उठाकर रखने लगी। आपका बेहद शुक्रिया, वरना मैं न जाने कहाँ कहाँ ख्वार हो रहा होता और शायद ही कोई ऐसी चीज़ पसंद आती। वो शख्स अब्बा का शुक्रिया अदा करता वहाँ से चलता बना, जबकि मैं काफ़ी देर तक अब्बा को उनकी जल्दबाजी पर घूरती रही। बिलाखिर वो भी मिठाई लेकर वहाँ से चले गए तो मैं भी काम मुकम्मल करके सीधा घर की राह ली। अम्मा भी मुंतज़िर रहती थी कि कब घर जाऊं और कब वो दिन भर की कहानी सुना सकें। सारा दिन मोहल्ले की औरतों के साथ काम करते बातें करती थी, फिर शाम को मुझे नई नई दिलचस्प बातें सुनाया करती। अभी मैं आधे रास्ते पर ही थी, मुझे खेतों में एक अजीब सा शोर बर्पा होने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो वही स्याह कोट में मलबूस ज़ीरू वहाँ से गुजरे। अंधेरा होने के बायस मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस मर्तबा उसका चेहरा काफ़ी खिला हुआ था। 2 चमकती आंखों ने मुझे काफ़ी पुरस्रार नज़रों से देखा। मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़का कि मैं अपनी चीखें दबाते हुए उल्टी सिमत भागने लगी और भागते भागते उस जगह से मैं एक सीधी सड़क पर आ गई। मैंने अपने चारों तरफ देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। शुमाल की जानिब वो कोट में मलबूस मेरे पीछे पीछे था। मैंने फरार होने की कोशिश की, लेकिन डर और खौफ में मुब्तला में रास्ता ही भटक चुकी थी और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मेरा खौफ भी शिद्दत इख्तियार करने लगा। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को मुखातिब किया और दुआएं करने लगी। यहाँ क्या कर रही हो? इस रास्ते पर आना ज़रूरी था? यकदम मेरे कानों में अब्बा की आवाज़ गूंजी। मैं पलटी तो सामने ही खड़े थे। दिल ही दिल में अल्लाह की भेजी गई मदद पर शुक्रिया अदा करके पलटकर उस कोट में मलबूस ज़ीरू को देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद न पाकर मुझे मज़ीद धचका सा लगा। क्या हुआ है? इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों लग रही हो? अब्बा ने मुझे खामोशी से बिना जवाब दिए दाएं बाएं हैरत से नजरें दौड़ाते देखा तो चटक कर पूछा। थे तो वो भी रवायती बाप, यूं तन्हा उस राह में देखकर थोड़ा सर्द लहजे में सवाल कर रहे थे। कुछ नहीं अब्बा, सोचा आज इस रास्ते से चलती हूँ। मैंने यकलख्त नफ़ी में सर हिलाकर उन्हें मुतमईन किया, इस डर से कि वो उससे भी ज्यादा बरहम न हो जाए। लेकिन आइंदा ध्यान रखना, ये रास्ता ठीक नहीं है। अब्बा ने सर पर हाथ धरते हुए मुझे नसीहत की और मैं उनके साथ घर की जानिब जाने लगी। इससे कबल मैंने एक मर्तबा फिर से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन कोई भी ना पाकर हैरत में घरी रह गई। ये किसने रखा है? मैं कमरे में आई तो मुझे अपनी चारपाई पर एक मफलर दिखाई दिया जो मुकम्मल स्याह था। उसकी चमक इस कदर हसीन थी, मैं देखते ही मुस्कुराने पर मजबूर हो चुकी थी। और फिर यकलख्त दिल ही दिल में बड़बड़ाती, शायद अम्मा ले आई होंगी। मैंने सोचा, लेकिन ख्याल आया कि वो ऐसे नहीं लाती, अगर लाएं भी तो हाथों में नजर आ जाता। सारा दिन मैंने यही सोचा और फिर अम्मी से जाकर पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। तो मेरा अली की जानिब ध्यान चला गया।
लेकिन दोपहर के इस पहलू से यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं समझा और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। वैसे भी ट्यूशन में कुछ ही वक्त रह गया था। अली, मेरे कमरे में ये स्याह चुनरी तुम लाए थे क्या? शाम को अली ट्यूशन पढ़ने आया तो मैंने उसे कमरे में बुलाया और फिर उससे उस मुफलर के बारे में पूछा तो वो देखकर चौंक उठा। नहीं बाजी, मैं क्यों लाऊंगा? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा और मैं मज़ीद हैरत में घिरती चली गई। उस दिन मैंने ही तुम्हें कहा था ना कि मुझे स्याह चुनरी पसंद है। अगर तुमने नहीं रखी तो किसने रखी है? अम्मी तो बाजार नहीं गई, जब जाए तो भी मुझे लेकर जाती हैं। मैंने उसका हाथ थामकर उसे याद दिलाने की कोशिश की कि शायद वो भूल चुका हो जब भी ऐसे कह रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर लाइल्मी के आसार भी बखूबी देखे जा सकते थे। शायद आपके कपड़ों में से पहले ही पड़ी हो और आपको ध्यान ही ना हो। अली ने बेजारी से दाएं बाएं देखते हुए कहा। मुझे जाने क्यों गुस्सा आने लगा। नहीं, मेरी ख्वाहिश थी ऐसे लेने की, लेकिन आजकल पैसे नहीं थे तो नहीं ली। बस तुमसे जिक्र किया था जब तुमने वो मुफलर गले में डाला हुआ था। मैंने भी उसे थाम कर प्यार से कहा कि शायद वो मुझे बिना बताए देना चाहता हो और ना बता रहा हो कि मैंने ही लाया है। मैं तो अभी बाजार भी नहीं गया। चले छोड़े, रख लें, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और पैसे भी नहीं लगे। इससे मज़े की और क्या बात हो सकती है? उसने सर झटक कर ताज्जुब से कहा और फिर अचानक ही पुरजोश होकर मुझे मशवरे देने लगा। हाँ, ये भी ठीक है, चलो तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं कपड़े इस्त्री करके आती हूँ। फिर सबसे सबक भी सुनना है, सब बच्चों को बोल दो मैं सुनने आ रही हूँ, सारा याद रखें। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और साथ ही सोच में मुब्तला मुफलर के बारे में महव हो गई। जी अच्छा, आप मुकम्मल करके आ जाए, मैं भी पढ़ता हूँ। अभी तक मैंने भी याद नहीं किया। सही नहीं सुनाया तो फिर आप बुरी तरह मारेंगी। जाते जाते उसने मुंह फुलाकर कहा और मैं परेशानी में धीरे से मुस्कुराई। अच्छा अच्छा, बातें मत बनाओ, मैं इतनी भी जालिम किस्म की उस्तानी नहीं हूँ। तुमने तो एक बार के देखे मंजर से मुझे जालिम में समझ लिया। मैंने बेदिली से उसे जवाब दिया और इस्त्रीशुदा कपड़े उठा लिए। शाम का पहर था, मौसम आजकल काफ़ी ख़राब रहता। दोपहर के पल भी यूं लगता कि आधी रात हो चुकी है। और ऐसे ही मौसम में जब भी अब्बा ऑर्डर देने गए हुए थे तो अचानक ही मुझे दुकान के बाहर किसी की मौजूदगी का खदशा लाहक हुआ। जिस दिन से मेरे साथ वो गहरी नज़रों वाला और पीछा करने वाला वाक़या हुआ, तब से मेरे होश आवाज़ ठिकाने से ज़रा दूर ही रहते। हर पल एक खौफ सा लाहक रहता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। उस पल भी मैं झुरझुरी लेकर दुकान के थोड़ा बाहर होकर डरते डरते बाहर देखने लगी। मुझे वही नज़रें दिखाई दी, वही कोट में छुपी गहरी नीली आंखें और छुपा हुआ चेहरा। यूं लगा जैसे मेरे सामने से गुजरा हो आंधी तूफान की मानिद और फिर ओझल हो गया और डर के मारे में लड़खड़ा कर दूर हुई। कौन है वहाँ? मैंने बिलाखिर थोड़ी हिम्मत की और फिर दबे लहजे में थोड़ा चिल्ला कर पूछा, जबकि दिल की धड़कन सौ की रफ्तार से भी ज्यादा तेज थी। क्या हुआ है? किससे बात कर रही हो? अचानक ही दुकान में अब्बा दाखिल हुए। उन्हें देखकर मेरे दिल को थोड़ी हिम्मत मिली। हर मर्तबा ही वो मुझे बचाने चले आते जब कोई उम्मीद, कोई ढहारस नहीं मिलती। पता नहीं, मुझे रोड के पार कोई चेहरा छुपाए शख्स नजर आया है। देखने गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। आवाज़ें भी देकर देख लिया, फिर भी मैंने डरते डरते अब्बा को बताया। दिल ही दिल में खौफ था कि शायद वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दें या फिर गलत कह देंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई फकीर होगा, वही चेहरा छुपाए घूमते हैं, वरना तो आजकल कौन चेहरा छुपाता है। अब्बा ने अपनी क्या सराई की, जबकि मैं उन्हें ये नहीं कह पाई कि मेरा पीछा तक किया गया है, वरना शायद वो परेशान हो जाते और मुझे दुकान पर लाने से ही इनकार कर देते, घर बैठने को कह देते। हाँ, ये भी है, कोई फकीर होगा, शायद भूख के मारे यहाँ स्याह लिबास पहने घूमता फिरता रहता है। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाए हुए सर हिलाकर कहा, जबकि मेरी जुबान खौफ से अभी तलक खुश्क थी और हाथ कांप रहे थे। अच्छा छोड़ो, मैं ये सामान लेकर आया हूँ, तुम मिठाई बनाने की तैयारी करो। ऑर्डर बड़ा है तो थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ सामान तुम्हारी माँ को भेज देता हूँ, वो भी बना देगी। अब्बा ने मुझे सामान पकड़ाया और साथ ही मिठाइयों की तफसील बताने लगे। मैंने उनके हाथों से सामान लिया और अपने हाथों की लग्जिश पर भी काबू पाया ताकि अब्बा की निगाह न पड़ सके। नहीं, उन्हें परेशान मत करें, मैं खुद ही बना लूँगी। आजकल वो मेरे जहेज की तैयारियों में मसरूफ़ है। कुशन, तकिए, सिराने सब की कढ़ाई कर रही हैं, थक जाती होंगी लेकिन कहती नहीं है।
मैंने अम्मा की परेशानी जांच कर अब्बा को इनकार कर दिया और यकीन दहानी करवाई कि मैं खुद ही काम कर लूँगी। हाँ, जब से रिश्ता तय हुआ है तुम्हारी माँ के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए हैं, हर वक्त तुम्हारे ही काम होते हैं। अब्बा भी अम्मा की खुशी को महसूस करते मुस्कुराए और मैं अब्बा को हंसता पाकर दिली इत्मीनान महसूस करने लगी। ये सब भी आपकी बदौलत हुआ है, वरना मैं तो कभी हाँ नहीं करने वाली थी। खैर कोई बात नहीं, रुखसती कौन सा भी होने दूंगी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें धमकी अमेज अंदाज में बावर करवाया, साथ ही मिठाई का मेज़ा तैयार करने लगी। जाने को जी चाहता था कि अब्बा से बहस करूं। अच्छा ज्यादा बातें मत बनाओ, मिठाई बनाओ, वक्त कम है। मैं नहीं चाहता इस बच्चे को मुझसे किसी किस्म की शिकायत हो या मिठाई खराब बने। अब्बा ने उल्टा मुझे ही डांटा तो मैं मुंह बनाकर खफकी से उन्हें देखने लगी। मेरी नाराजगी देखकर वो मजीद मुस्कुराने लगे। पिछले 2-4 दिन से कुछ बेहतर दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह मेरा रिश्ता तय होना था। रोका तो था कि मत ऑर्डर लें, बहुत दूर जगह है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। खिदमत खल्क का शौक चढ़ा हुआ था। मैंने मुंह बनाया तो वो मुझे घूरने लगे, सो मैंने खामोशी में आफियत जानी और चुपचाप मिठाई का मेज़ा तैयार करके उसे पकाने का काम शुरू करने लगी। अब्बा तो जुबान दे चुके थे और काम मेरे ही नाजुक कंधों पर था, जो सारे का सारा मैंने करना था। तुम्हारे अब्बा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो, मिठाई का ऑर्डर तैयार है, खुद ही देती आओ। मैं अपने कमरे में बैठी थी, शाम का पहर था, अब्बा भी लेटे हुए थे। जब अम्मी ने आकर मुझे ऑर्डर देने का कहा तो मैं जी भर कर गुस्से में आई। इसी बात से मैंने अब्बा को रोका भी था और बाज़पुर्स भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा और सब तबीयत खराबी का कहकर मुझे यूँ खराब मौसम में देने को कह रहे थे। लेकिन मैं उस वक्त कैसे देने जाऊँ जब मौसम भी खराब है, शाम के साए भी गहरे हो रहे। किसी और को भेज देना। आज से कबल तो रात के ऑर्डर्स आपने नहीं लिए, तो ये ही क्यों लिया था। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए अम्मा को देखा तो वो खुद भी मुझे भेजने पर परेशान सी थी, लेकिन अब्बा की दी गई जुबान का पास रखना भी ज़रूरी था। वो मिन्नतें कर रहा था, पुत्र, मजबूरन मुझे हामी भरनी पड़ी। तुम परेशान मत हो, साथ किसी मोहल्ले के बच्चे को लेती जाओ, कुछ नहीं होता। अचानक ही अब्बा मेरे कमरे में चले आए। उनके चेहरे पर थकन के आसार देखकर मेरा दिल पसीजा और मैं यकलख्त बिस्तर से उठी, उन्हें थाम कर एहतियात से वहां बिठा दिया। मैं तभी रोकती रही थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि खिदमत खल्क का बेड़ा तो आपने उठाया हुआ है। इतनी दूर आप जा भी नहीं सकते थे। मैंने खफकी से उन्हें घूरा तो वो मुस्कुराए। जानते थे कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से कबल थोड़ा सा गुस्से का इजहार करना था। अच्छा ना, कोई बात नहीं है, तुम्हारे अब्बा की दवा के पैसे हो जाएंगे। तुम भी बच्चों को पढ़ाने में सर खपाती रहती हो, अब क्या यूं मैं तुम्हें सारा दिन ख्वार होता देखूं। अम्मा ने अब्बा को खामोश देखा तो मुझे डपटने लगी। मैंने मुंह बनाया, वो मैं खुद भी कर लेती हूँ, आपको क्या ज़रूरत है परेशान होने की। मैं भी इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि अब्बा की दवा के पैसे न बना सकूँ। मैंने अम्मा को भी मुतमईन किया। वो दोनों मुझे बेहद कमज़ोर लड़की समझते, जो कि मैं बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, पता है तुम किस कदर बहादुर हो, अब बहादुरी दिखाओ और मिठाई देकर आओ। अम्मा ने हाथ खड़े कर दिए और मज़ीद डांट दिया। मैं मुंह फुलाते हुए अपने सादा से कपड़े उठाकर बिस्तर पर रखने लगी। अच्छा, मैं कपड़े बदल लूँ तो जाती हूँ, पड़ोस से अली को कह दे मेरे साथ जाए, तब तक मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ये मिट्टी से अटे हुए हैं, अबाया भी गंदा कर देंगे। मैंने सर इस बात में हिलाया और फिर उन दोनों को कमरे से भेजकर कपड़े बदले और ऊपर अबाया भी ओढ़ लिया, ताकि बारिश से सर्दी भी कम लगे और थोड़ा बच भी जाऊं। इसके साथ ही सर्दी के बायस कुछ और नहीं मिला तो गले में वो काला मुफलर डाला जो मुझे मिला था। तुम यहीं रुको, मैं देकर जल्दी आ जाती हूँ, आगे पीछे मत होना, मौसम खराब है, मुझे ढूंढने में दुश्वारी होगी। मैं अली के साथ तैयार होकर चली आई। उस पल मैंने अबाया लिया था और सर पर भी वो ऊनी मुफलर लपेटा था, ताकि मुझे सर्दी न लग जाए, क्योंकि सर्दी मुझे बुखार में मुब्तला कर देती, जिसका ठीक होना बेहद मुश्किल अमर होता। मैं उस पते पर पहुंची तो एक छोटा सा बेहद खूबसूरत घर था, जिसके बाहर वाली दीवारें मुकम्मल सफ़ेद थी। मैंने पलटकर अली को वहीं रुकने का बोला और खुद अंदर जाने लगी, लेकिन फिर जल्दी से उसे इधर उधर ना होने की ताकीद की। आप बेफिक्र रहें, मैं यहीं खड़ा हूँ, बस जल्दी से देकर आ जाएं। अली ने मुझे तसल्ली दी तो मैं उस खूबसूरत घर के अंदर चली गई। अंदर दाखिल होते ही मेरी आंखें अंधेरे में गुम हो गई। बाहर से वो घर तो सफ़ेद था, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुकम्मल स्याह था।
اس کی دیواریں البتہ سیاہی سے لپٹی تھی، جیسے کسی نے ان پر سیاہی الٹ دی ہو۔ میں حیرت سے اس عجیب منظر کو دیکھنے لگی۔ یک لخت ہی وہاں روشنیاں جل اٹھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مانو میرے ہاتھ پیر کانپ گئے۔ مٹھائی میرے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو میرا پیچھا؟ میں نے سامنے ہی سیاہ کوٹ میں ملبوس ذی روح کو دیکھ کر چیخ کر کہا۔ وہ میرے سوال پر پلٹا اور اپنا ڈھکا ہوا چہرہ الٹ دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میں مزید حیرت میں گھر گئی۔ وہ مٹھائی کا آرڈر دینے والا وہی خوبرو شخص تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ لڑکی ہے، اس سے شادی کروا دو۔ اچانک ہی کسی کونے سے 2-3 عورت نما شخصیات نکلی۔ اس شخص نے میری جانب اشارہ کر کے انہیں کہا۔ وہ سیدھا میرے سر پر آن کھڑی ہوئی اور دونوں نے میرے بازو جکڑ لیے۔ کیا مطلب؟ شادی؟ کس کی شادی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے ان دونوں کو حیرت سے دیکھ کر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ان کے ہاتھ اس قدر فولادی تھے کہ مجھے اپنی کلائیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اسے پکڑے رکھو، یہ بھاگ سکتی ہے، بہت مشکل سے ہاتھ آئی ہے۔ کتنے دن سے پیچھا کر رہا ہوں، لیکن یہ تو ٹیڑھی کھیر نکلی۔ اس شخص کے چہرے پر جو کل تک مجھے بے حد نرمی، اطمینان اور شائستگی نظر آتی تھی، آج بالکل معدوم تھے۔ اس کی جگہ وہاں پر کرختگی تھی، روب تھا اور حقارت تھی، جسے دیکھ کر میں بے یقینی سے دلی صدمے سے دوچار ہونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ دماغ پر زور دے کر بھی دیکھ چکی تھی۔ کیا بولے جا رہے ہو تم؟ کون اور میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ مجھے ہر جگہ کیوں دکھائی دیتے ہو؟ میں ناسمجھی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر چلا کر پوچھنے لگی۔ ان عورتوں کے چہرے دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی ان کے وجود سے عجیب مدہوش کر دینے والی مہک آ رہی تھی، جس سے مجھے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ میں چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ ان کی گرفت میں تھے اور میں اس تکلیف سے بمشکل بول رہی تھی۔ میں ایک جن زادہ ہوں، میرا بیٹا ہے جن زادہ، اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کی ساری طاقتیں سیاہی میں لپٹی ہیں۔ کئی دن سے میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس کا علاج ایک انسانی لڑکی سے شادی کروانے پر ہو سکتا ہے، اور لڑکی بھی وہ جس کو سیاہ رنگ پسند ہو۔ اس شخص نے دھیرے دھیرے مجھے بتانا شروع کر دیا، اور پھر وہیں موجود صوفے سے پردہ اٹھایا۔ سامنے ہی ایک بونے کی شکل میں موجود سیاہ حبشی قسم کا جن زادہ موجود تھا، جسے دیکھ کر میں الٹے قدم پیچھے ہونے لگی۔ اس قدر بھیانک حقیقت کھلنے پر میرے اعصاب گرنے سے لگے۔ میں شادی نہیں کر سکتی، مجھے گھر جانے دو، ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے یک لخت ہمت کی اور چلا کر بولنا شروع کر دیا، ساتھ ہی پوری طاقت لگا کر ان عورتوں سے اپنی جان بچانے لگی۔ مجھے اب دکھائی دینا شروع ہوا تھا۔ اس گھر کی دیواروں پر کھوپڑیاں لٹک رہی تھی، چاروں جانب ایک عجیب سی بو کا منظر تھا۔ وہ شخص بھی اپنے جن زادے کے روپ میں آ چکا تھا، سخت چٹانوں سا انداز، چہرے پر کھردرا پن اور پتھریلی صورت۔ تم ایک ویرانے میں آ چکی ہو، یہاں تمہارا چیخنا چلانا بیکار جائے گا، تم میری تحویل میں ہو۔ اس نے میرے قریب آ کر اپنا چہرہ میرے سامنے جھکا کر مجھے ہنستے ہوئے اطلاع دی تو میں مزید خوف میں گرتی چلی گئی۔ میرے اوسان ڈر سے خطا ہو چکے تھے۔ 1 منٹ، اس کا مطلب وہ سیاہ مفلر بھی تم نے رکھا تھا، اور ہر جگہ تم مجھے اٹھا کر لے جانے والے تھے؟ یہ مٹھائی کا بھیس بدل کر آنے والے تم ہی تھے؟ یک لخت میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا، اور پھر میں نے اپنے ذہن میں آئے سوال کو زبان پر لایا۔ ہاں، میں وہی تھا۔ تم سیدھی طرح ہی نہیں آ رہی تھی، سو مجھے الٹا طریقہ آزمانا پڑا، اور اس مفلر کی طاقتوں سے ہی تم آج یہاں پر ہو، ورنہ تم کبھی نہ آتی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی ہر بات کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ میرے سارے منفی خدشات حقیقت ثابت ہو رہے تھے، اور میں مزید ڈرتی جا رہی تھی۔ مجھے جانے دو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، چھوڑ دو، یہ گناہ ہے۔ میں نے روحان سی ہو کر چلانا شروع کر دیا۔ تم مدد کر رہی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس دن میرے بیٹے کی طاقتیں مکمل ہو جائیں گی، میں تمہیں خود یہاں سے تمہارے گھر روانہ کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک امید بھری نگاہ سے دیکھ کر کہا، تو میں نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ وہ ایک مفاد پرست جن زادہ تھا، جس کو اپنے ہی کام سے مطلب تھا، جس کے لیے وہ اس قدر لمبی ترین چال چل چکا تھا۔ یہ امید بھری نظریں بھی ایک قسم کی چال ہی تھی، جس میں وہ مجھے لانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی نگاہوں میں بھی سازش اور مطلب پرستی دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی،
میں باپ کو شرمندہ نہیں کر سکتی. چھوڑو مجھے، میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو. میں نے چیخ کر کہا اور پھر ان عورتوں کو غصے سے اور جنوں کو دیکھا کہ وہ میرے ہاتھ چھوڑ دیں. لے جاؤ اسے اور عروسی لباس پہنا کر لاؤ. اگر شور مچائے تو زور زبردستی کا حق میں تمہیں دیتا ہوں. جنزادے نے ان عورتوں کو حکم دیا تو میں نے چینا چپٹی شروع کر دی. اسی اثنا میں میرا ہاتھ 2 قدم دور صوفے پر بے سود پڑے اس کے بیٹے کی گردن پر جا لگا. میں نے یک لخت ان کو دھمکایا اور ڈرانا شروع کر دیا. میرے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ میں اس بے جان پڑے جنزادے کو مارنے والی تھی. ساتھ ہی ساتھ میں نے دل میں درود پڑھنا شروع کر دیا. اچانک مجھے وہاں سفید دھواں پھیلتا دکھائی دیا اور وہ عورتیں اور جنزادہ چیخنے چلانے لگے. انہوں نے جان لیا کہ میں کوئی دم کر رہی ہوں اور ان کے ہوا میں تحلیل ہونے کی دیر تھی. میں الٹے قدموں باہر کی جانب بھاگی اور وہ جنزادے آگ کے شعلوں سے یک لخت دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو چکے تھے. آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ میں کب سے ٹھنڈ میں کھڑا ہوں. میں بھی کاش ساتھ ہی چلا آتا. میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. اس گھر سے باہر بھاگی. سامنے ہی علی کانپتے ہوئے مجھے بولا تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر کے اس کا بازو پکڑا اور آگے چلنے لگی. میرے قدموں کی رفتار تیز تھی. ہاں بس تھوڑا وقت لگ گیا ہے، چلو جلدی تیز قدموں سے بھاگو. میں نے جاتے جاتے اس کو بھی جواب دیا تاکہ وہ مزید کوئی سوال نہ کر سکے، جبکہ وہ میرے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر کافی پریشان تھا. لیکن میں نے اسے یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا گھر جا کر دم لیا. اس حادثے سے تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہو. گھر واپس آ کر میں بالکل گم سم رہنے لگی. اماں نے کافی دیر لگانے کی وجہ پوچھی تو میں نے موسم کی خرابی کا بہانہ کر دیا. اس کے بعد دکان پر جب بھی کوئی دور جگہ کا آرڈر ملتا تو میں یک لخت سرد مہری سے ابا کو ٹوک دیتی. وہ وجہ پوچھتے تو میں وہ بھی نہیں بتاتی تھی. اس حادثے سے نکلنے میں مجھے کئی ماہ لگ گئے تھے، کیونکہ خواب میں وہی چہرے، وہی کھوپڑیاں، اس جنزادے کا سیاہی میں لپٹا بیٹا مجھے دکھائی دیتا جس نے مجھے خوفزدہ کیے رکھا. لیکن اس میں سے نکلنے میں میری مدد قرآن پاک نے کی اور اللہ سے دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ میں سنبھل گئی تھی. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.